بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ کیمرہ اس کے عکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے کہ کیمرہ تو عکس کو ٹی وی سکرین تک لاتا ہے، پھر گاڈ مدر سکرین سے باہر آ کر کھلی فضا میں ٹہلتی ہوئی اس پولیس آفیسر کے کمرے میں کیسے پہنچ گئی تھی؟ ہاں، یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ ہم سائنس کے انتہائی ترقی یافتہ دور میں ہیں، اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میں نے اور علی نے دن رات کی محنت سے یہ آلہ تیار کیا ہے۔ اس آلے کے ذریعے عکس کو سکرین سے باہر لایا جا سکتا ہے۔ مافیا کی گاڈ مدر کے پاس بھی ایسے منی کیمرے اور آلات موجود ہیں۔ پارس کی باتوں کے دوران کوئی اور بھی بول رہا تھا، پھر اس کے جواب میں بھی ایک اور شخص بولتا جا رہا تھا۔ شیتارا نے اندازہ لگایا کہ کچھ لوگ پارس کو ویڈیو فلم کے ذریعے کہیں بیٹھا دیکھ رہے ہیں یا اس کی آواز ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سن رہے ہیں۔ شیتارا نے پاشا کی سوچ میں کہا، مجھے پارس کے علاوہ اور کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مجھے ان بولنے والوں کی آوازوں کو گرفت میں لینا چاہیے۔ پاشا نے ان آوازوں کی طرف توجہ دی تو وہ صاف سنائی دینے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، تم ہمارے ملک کے نامور اور ذہین سراغ رساں ہو، تم نے بڑی چالاکی سے پارس اور فرانس کے انٹیلیجنس کے چیف کی گفتگو ریکارڈ کی ہے۔ سراغ رساں کی آواز سنائی دی، سر، میں نے چیف کے دفتر میں ڈیٹیکٹیو آلہ چھپا دیا تھا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملا، ورنہ میں وہاں منی کیمرہ چھپا کر رکھتا تو ابھی آپ سکرین پر پارس کے ساتھ ان آلات کو بھی دیکھ رہے ہوتے جو کسی کے بھی عکس کو منتقل کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ شیتارا پاشا کے ذریعے یہ گفتگو واضح طور سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ سراغ رساں کی آواز کچھ کمزور سی ہے، پھر اس کی کھانسی بھی سنائی دی۔ وہ فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی اس کے اندر پہنچی تو پتہ چلا وہ سراغ رساں بیمار ہے اور اس وقت ماسک مین کے سامنے بیٹھا ہوا ایک کیسٹ کے ذریعے پارس کی باتیں سن رہا ہے اور ماسک مین کو سنا رہا ہے۔ اسی وقت ماسک مین نے ریکارڈر کو آف کر دیا، پارس کی آواز بند ہو گئی۔ شیتارا پارس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اس سے رابطہ ہوتے ہی سلسلہ ماسک مین تک پہنچ گیا۔ پھر دو اہم باتوں کا انکشاف ہوا، ایک یہ کہ پارس اور علی نے انسانی عکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کچھ جدید آلات تیار کیے ہیں اور ایسے آلات مافیا تنظیم والے بھی تیار کر چکے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ ماسک مین اس وقت اپنی رہائش گاہ میں بیٹھا ووڈکا پی رہا تھا، یعنی اس کے دماغ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بڑے آرام سے اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ نیا ماسک مین تھا، اس سے پہلے جو ماسک مین تھا وہ اپنی طبی عمر پوری کر کے مر چکا تھا۔ موجودہ ماسک مین اگرچہ یوگا کا ماہر تھا، لیکن ایک طویل عرصے سے دشمن خیال خوانی کرنے والوں سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی دشمن اس کے ملک کا رخ نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھی پینے لگا تھا۔ جس رات پیتا تھا اس کے 3 دنوں تک اچھی خاصی ورزش کر کے یوگا کی مہارت کو بحال کر لیتا تھا۔ شیتارا کو بھلا اس سے اچھا موقع اور کیا ملتا؟ وہ ماسک مین کے ذریعے روس کے بہت سے اہم معاملات میں سیاہ و سفید کی مالک بن سکتی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ایون راسکا تک پہنچ سکتی تھی۔ ماسک مین نے اس کی مرضی کے مطابق سراغ رساں سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہاں کے معروف سائنسدان اور میکینک کو پارس کا یہ کیسٹ سناؤں گا۔ وہ اس موضوع پر غور کریں گے کہ عکس کو سکرین کے باہر اپنے مطلوبہ مقام تک کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ سراغ رساں وہاں سے چلا گیا۔ ماسک مین ووڈکا کا آخری گلاس پی رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد معمول اور تابعدار بن کر شراب چھوڑنے والا تھا۔ شیتارا نے گلاس ختم کرانے کے بعد اسے بستر پر پہنچا دیا۔ پھر اس نے عمل کرنے کے دوران یہ معلوم کیا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ایون راسکا کو کس طرح ایک بہت بڑے محل میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ اس محل میں اسے ہر طرح کا عیش و آرام تھا، وہاں اس کی ہر ضرورت پوری کی جاتی تھی، صرف کسی انسان سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ محل کے باہر جو مسلح پہرے دار تھے وہ بھی اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ایسے الیکٹرانک انتظامات تھے کہ کوئی پرندہ فضا میں پرواز کرتا ہوا محل کی چھت پر جانا چاہتا یا کیڑے مکوڑے زمین پر رینگ کر اندر پہنچنا چاہتے تو سیکیورٹی روم میں سگنل ملنے لگتا تھا۔ وہاں کے 1 درجن ٹی وی سکرین پر محل کے ہر حصے کا منظر واضح ہو جاتا تھا، یوں رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہاں کوئی کیڑا ہو یا انسان، وہ خود کار نظام کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ صرف ماسک مین ہی ایون راسکا سے ملاقات کرتا تھا، یوں وہ خیال خوانی کے ذریعے ماسک مین سے تمام اہم معاملات پر گفتگو کرتا تھا۔
لیکن جب وہ کسی حسینہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا، ماسک مین ایک ہیلی کاپٹر میں کسی حسینہ کو لے کر آتا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر محل کی چھت پر اترتا تھا۔ ماسک مین اندر آ کر اس حسینہ کو ایون راسکا کے پاس پہنچا کر سیکیورٹی روم میں آ جاتا تھا، پھر وہاں مختلف سکرینز پر انہیں دیکھتا رہتا تھا تاکہ وہ حسینہ اگر اس کے ٹیلیپیتھی جاننے والے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے پہلے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ شیتارا نے اس کے دماغ سے ان تمام اہم افسران کے نام اور فون نمبر معلوم کیے جو ایون راسکا کی نگرانی اور حفاظت کے ذمہ دار تھے، پھر اس پر ضروری تنویمی عمل کر کے اسے سلا دیا۔ پاشا تابع دار تھا۔ شیتارا اس کی سوچ کے ذریعے اسے جو کام سونپ دیتی تھی وہ اسی کام سے لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کان لگائے بیٹھا تھا، لیکن پارس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی سوچ میں بولی، مجھے عقل سے کام لینا چاہیے۔ اتنی دیر سے اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک میں ہے جہاں اس وقت رات زیادہ گزر چکی ہے اور وہ گہری نیند میں ہے۔ اب میں 6 گھنٹے بعد اس کی آواز سن سکوں گا۔ شیتارا دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ پاشا جس لہجے کو گرفت میں لے کر پارس کی گفتگو سنتا رہا تھا وہ اب پارس کا موجودہ لہجہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو پاشا کیسٹ ریکارڈر والی گفتگو نہ سنتا، کہیں گہری نیند سونے والے پارس کے پاس پہنچتا۔ خیال خوانی کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ ثابت ہو گیا کہ پارس نے اپنی آواز اور لہجے کو بدل دیا ہے۔ وہ 2 چشمی ہیرے کھٹک رہے تھے، انہیں حاصل کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ آگے بڑے مسائل اس کے انتظار میں تھے، بڑے بڑے مراحل سے گزر کر اسے کامیابیاں حاصل کرنی تھیں، اور یہ مبارک مواقع اس وقت حاصل ہوتے جب وہ دونوں ہیرے اسے حاصل ہو جاتے۔ وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے سونیا سانی سے رابطہ کیا۔ سانی نے پہلی بار سانس روک لی۔ 1 منٹ کے بعد اسے دوسری بار محسوس کر کے بولی، کون ہو تم؟ میں شیتارا ہوں، پارس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر پارس کے پاس جاؤ۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن اس نے آواز اور لہجہ بدل لیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے باتیں نہ کرنا چاہتا ہو۔ تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ میں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے باتیں کرنے سے انکار کر دے۔ وہ کوئی نہیں ہے، پارس ہے، وہ پارس جسے تم دشمن سمجھتی ہو۔ کیا اس سے صلح کرنے آئی ہو؟ یہی سمجھ لو۔ پلیز اس سے باتیں کراؤ۔ اچھی بات ہے، 10 منٹ کے بعد آؤ۔ وہ چلی گئی۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ سانی، علی، صفورہ اور پارس جھیل کے کنارے دوڑ لگا رہے تھے اور مختلف اقسام کی ورزشیں کر رہے تھے۔ شیتارا کے آنے اور جانے کے دوران سانی ایک جگہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پارس کو مخاطب کیا، اے ہیرو ادھر آؤ۔ وہ بولا، آج کا دن اچھا ہے، تم نے علی کو چھوڑ کر مجھے ہیرو بنا لیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، لوگ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں اور تم ایسے گدھے ہو کہ ہیرو کہنے کے باوجود گدھے ہی رہو گے۔ وہ قریب آتے ہوئے بولا، کیا میں ایسا گدھا ہوں کہ کچھ بھی کہہ دو تو گدھا ہی رہوں گا؟ وہ تنبیہ کے انداز میں ایک انگلی دکھا کر ہنستی ہوئی بولی، خبردار آگے نہ کہنا، میں سمجھ گئی ہوں کہ تم مجھ سے کیا کہلواؤ گے، کام کی بات کرو۔ وہ جھیل کے کنارے گھاس پر بیٹھ گیا، پھر بولا، کام کی بات کیا ہے؟ تمہاری وہ چہیتی ابھی آئی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے اس کا نام نہیں پوچھا؟ میں نے تمہارے آس پاس کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، ظاہر ہے وہ تمہارے دماغ میں آئی ہوگی، اور یوں آنے والی صرف شیتارا ہے۔ کیا وہ باربرا نہیں ہو سکتی؟ تم نے چہیتی کہا ہے اور باربرا چہیتی بننا ہی نہیں چاہتی۔ کبھی الپا اور مرینا بھی تمہاری ہی رہی ہیں، وہ یعنی کہ وہ کبھی وہ تھی مگر اب وہ نہیں ہے۔ تم خامخواہ وہ باتیں کر کے میرا موڈ بھی وہ کر رہی ہو اور وقت بھی وہ کر رہی ہو۔ اگر تم 4 بار جلدی جلدی وہ منہ اٹھا کر کہو گی تو بھونکتی ہوئی دکھائی دو گی۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت شیتارا آ گئی۔ سانی نے کہا، شیتارا میرے پاس آئی ہے اور اب تمہارے پاس پہنچ رہی ہے۔ پارس نے کہا، وہ آئیں ہماری کھوپڑی میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کی سنیں گے، کبھی ان کو سنائیں گے اور خوب سنائیں گے۔ شیتارا نے اس کے اندر آ کر کہا، بڑی زندہ دلی سے بول رہے ہو۔ میں ہمیشہ ہی زندہ دل رہتا ہوں، مردہ دل مجھے خاک نہیں سمجھتے۔ میں مردہ دلی اور خود غرضی پیچھے چھوڑ کے آئی ہوں۔ میں کہ واپس جاؤ گی تو پھر یہی بیماریاں لگ جائیں گی، قسم کھاؤ واپس نہیں جاؤ گی۔ پلیز سنجیدہ ہو جاؤ اور اس مسئلے پر غور کرو، آخر ہم کب تک جدا رہیں گے؟ جب تک ہمارا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ میری طرف سے شادی کے بعد بھی تمہارا دھرم سلامت رہے گا۔ باتیں بنا کر مجھے نہ الجھاؤ۔ مسجد کے اندر پوجا کی گھنٹیاں نہیں بجتیں۔ مسلمان کے گھر میں ہندو عورت کا دھرم کمزور ہوتا رہے گا، اس حقیقت سے انکار نہ کرو۔ بے شک قیامت آ جائے تب بھی مسجد میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی۔ ہندوستان میں ہندو مسلمان کی شادیوں کی قانونی اجازت ہے،
तुम अपने मुल्क के कानून का एहतराम करो और मुझसे शादी करके मेरी घंटियां बजाती रहो। शादी की क्या ज़रूरत है, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, बीवी बच्चों के अखराजात से बचा रहूँगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर मिलने से तुम्हारी मुराद ये है कि मेरे रूबरू आना चाहती हो तो मैं कभी यकीन नहीं करूँगा। यकीन ना करने की वजह, मुझे जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की पेशीन गोई पर एतमाद है। तुम 7 बरस बाद ही असली रूप में मिलोगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हर पेशीन गोई दुरुस्त हो। अगर मैं शाम तक तुम्हारे सामने चली आऊँ तो मैं फ्रॉड को समझ लूँगा। ये तो याद होगा कि मैं तुम्हारी महक से तुम्हें पहचान सकता हूँ। वो हंसकर बोली, अब नहीं पहचान पाओगे। मैंने अपना ऑपरेशन कराया है जिसके नतीजे में मेरे बदन की बू तब्दील हो गई है। मैं भी अपना ऑपरेशन कराने के बाद तुमसे मिलूंगा। ऑपरेशन के नतीजे में मेरे अंदर का जहर ख़त्म हो जाएगा। विसाल के लम्हात में ये शिकायत ना करना कि मैं वो पारस नहीं हूँ जिसकी जहरीली कशिश तुम्हें दीवाना बनाती है। यानी तुम अपनी डमी को मेरे पास भेजोगे। जाहिर है डमी शितारा से पारस की डमी ही मुलाकात करेगी। पारस, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि फजूल कस्में खाकर मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करो। मैं तुम्हारी मखसूस बू के बगैर दुनिया की किसी शितारा पर भरोसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारा एक अहम राज मालूम किया है। चलो अच्छा है, मालूमात में इजाफा होते रहना चाहिए। तुम मजाक समझ रहे हो। मैंने वो अक्स मतलूबा जगह मुंतकिल करने वाली टेक्निक मालूम की है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आइंदा हम तुम अक्स बनकर एक दूसरे की तन्हाइयों में आ सकते हैं। अक्स का कोई मज़हब या धर्म नहीं होता। हम अक्सी शादी करेंगे और अक्सी सुहाग रात मनाएंगे। इस तरह तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास महफूज रहेगा। क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मुझे तुम्हारा ये राज कैसे मालूम हो गया? ये कोई राज है ही नहीं। हमसे पहले माफिया तंजीम की गॉड मदर ट्रेसा कई बार इसका मुजाहिरा कर चुकी है। तुम मुझे मायूस कर रहे हो। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि तुम किसी के सामने अक्स को मुंतकिल करने वाले आलात और उनके इस्तेमाल के तौर तरीकों पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये गुफ्तगू एक सुराग रिसाने कैसेट में रिकॉर्ड करके मास्क मैन तक पहुंचाई है। इससे जाहिर होता है कि तुम मास्क मैन तक पहुंची हुई हो। तुम्हारी नज़र उसके टेलीपैथी जानने वाले एवन रास्का पर होगी। शितारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पारस के सामने अपनी कामयाबियों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। वो बोली, हमारी आज की दुनिया में यही हो रहा है। जिसे देखो वही किसी ना किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपना गुलाम बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। तुम लोगों को मौका मिलता है तो तुम भी यही करते हो। हम लोग जिसे ट्रैप करते हैं उसे आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने के लिए रिहा कर देते हैं। बेचारा एवन रास्का एक गोशे में सुकून से है। उसे सुकून से रहने दो। क्यों उसे मास्क मैन के महल से निकालने पर तुली हुई हो? वो बाहर आएगा तो बेशतर टेलीपैथी जानने वालों की तरह ख्वार होता रहेगा। तुम कहाँ की बातें ले बैठे, दूसरी बात करो। तुम इतनी देर से बातें कर रही हो मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि 2 चश्मी हीरों का जिक्र कैसे छेड़ा जाए। उन हीरों के लिए इत्मीनान है। तुमने पिछली बार कहा था कि वो दोनों हीरे तुम्हारे पास मेरी इमानत हैं। बेशक 7 बरसों तक वो मेरे पास इमानत के तौर पर रहेंगे और वो तुम्हें ही मिलेंगे। हाँ, इस इत्मीनान के बावजूद मुझे उनसे महरूम नहीं रहना चाहिए। वो मुझे आज मिल जाएं तो आज ही से मेरे दिन फिर जाएंगे। खुशबख्ती ऐसे नसीब होगी कि तमाम नहूसतें दूर हो जाएंगी। प्लीज़ पारस, मुझे अपनी कनीज़ समझकर वो हीरे मुझे दे दो। 2 चश्मी हीरे 2 ही सूरतों में हासिल हो सकते हैं कि मैं अपनी खुशी से उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं या फिर तुम किसी हिकमत अमली से उन्हें मुझसे छीन लो। जो काम मोहब्बत से हो सकता है उसे अदावत से नहीं करूंगी। तो मेरे अंदर रहकर देख रही हो कि मैं पेरिस में उस झील के किनारे हूँ और यहाँ बने हुए कॉटेजेस में से एक कॉटेज में रहता हूँ। तुम यहाँ और मोहब्बत से उन्हें ले जाओ। वो दोनों हीरे हमेशा मेरे पास रहते हैं। खुद ना आना चाहो तो किराए के कातलों को भेज दो। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अब उसे फैसला करना था कि वो मोहब्बत से उन्हें हासिल करे या किराए के कातलों को भेजकर अदावत का रास्ता इख्तियार करे। बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। दिल अदावत पर राजी नहीं था और यही दिल मोहब्बत से भी डराता था। ब्लैक एडम ने हवालात में आकर जे परगोला को बड़ी सख्त वार्निंग दी थी। उसे कहा था अगर वो अक्स मुंतकिल करने और बैंक लूटने वालों की निशानदही नहीं करेगा तो उसे टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया जाएगा। फिर ऐसी ऐसी ज़हनी और जिस्मानी अजियतें दी जाएंगी जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मुजरिमों की निशानदही करने पर मजबूर हो जाएगा। ब्लैक एडम उसे 1 घंटे की मोहलत देकर गया था। 1 घंटे बाद हवालात में आया तो पता चला जे परगोला आहनी सलाखों के पीछे से निकलकर थाने इंचार्ज के साथ कहीं चला गया है। उसने गरज कर पूछा, वो कहाँ गया है?
थाना इंचार्ज को ये इख्तियार किसने दिया कि वो एक मुलजिम को अपने साथ हवालात से बाहर ले जाए? तमाम सिपाही सहमे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि एक पुलिस ऑफिसर मुलजिम को लेकर कहाँ गया है। ब्लैक एडम ने फ़ोन के ज़रिए टेरी एडम से कहा, बिग ब्रदर, जे परगोला कैद से निकलकर थाना इंचार्ज के साथ कहीं चला गया है। टेरी ने पूछा, क्या वो थाना इंचार्ज को किसी दबाव के तहत ले गया है? सिपाहियों का बयान है कि वो दोनों मुस्कुराते और बातें करते हुए थाने की किसी गाड़ी में बैठ कर गए हैं। परगोला के साथ जो विच लेडी थी वो अब कहाँ है? वो हवालात में है। उसके पास जाओ, बातें करो और उसकी आवाज़ सुनाओ। ब्लैक एडम ने हुक्म की तामील की। हवालात के दूसरे कमरे में विच लेडी एला क्लैंसी के पास आकर बोला, तुम्हारा साथी जे परगोला यहाँ से फरार हो गया है। हमें बताओ वो कहाँ गया होगा। वो कमीना मुझे यहाँ छोड़ गया है, जबकि वो मेरा मेहमान था। मेरे पास रहकर मेरा नमक खा रहा था। वो शायद अभी मेरे घर ही गया होगा, मगर नहीं, वो बहुत चालाक है। ऐसी किसी जगह नहीं जाएगा जहाँ गिरफ्तारी का अंदेशा हो। टेरी ने ब्लैक एडम से कहा, मुझे उसके दिमाग में जगह मिल गई है। तुम जाकर आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो विच लेडी के दिमाग में आया तो जे परगोला की हकीकत मालूम हुई। एक्सरे मैन भी उसके चोर ख्यालात से मालूम कर रहा था कि जे परगोला ने वाशिंगटन में एक खुफिया तंजीम बनाई है। उस तंजीम की अहमियत यह है कि उसमें जेरी और थर्मोल दो ख्याल ख्वानी करने वाले जवान हैं। खुद जे परगोला शैतानी हिप्नोटिज्म का माहिर है और कमज़ोर इरादों वाली औरतों और मर्दों को अपनी आंखों के ज़रिए 1 मिनट में सहरज़दा कर देता है। फिर यह भी मालूम हुआ कि उसने मरीना को भी अपनी शैतानी चालों से फांस लिया था, लेकिन वो तिलबीब आकर उसके शहर से निजात हासिल कर चुकी थी। वो इस शहर में उसे ढूंढने आया था, साथ ही फॉर्मूले भी हासिल कर लेना चाहता था। टेरी एडम ने ये तमाम बातें ब्लैक एडम को बताईं। एक्सरे मैन अपने उन मातहतों के दिमागों में छुपा हुआ उनकी बातें सुन रहा था और इस सिलसिले में उनकी राय मालूम कर रहा था। ब्लैक एडम ने कहा, हमें सबसे अहम बात यह मालूम हुई है कि परगोला महज एक जादूगर नहीं है। उसकी दोनों मुट्ठियों में 2 टेलीपैथी जानने वाले हैं। टेरी ने कहा, और वो तीसरी टेलीपैथी जानने वाली मरीना की तलाश में है। अब जहन में ये सवाल उभरता है, क्या परगोला के टेलीपैथी जानने वालों ने हैरी को ट्रैप किया है? नहीं, अगर हैरी का दिमाग उनके काबू में होता तो परगोला समंदर के किनारे हैरी का ताकुब ना करता। तो फिर मरीना ने हैरी को ट्रैप किया है? ब्लैक एडम ने कहा, हैरी के फ़ोन पर मैंने जिस टेलीपैथी जानने वाले की बातें सुनी हैं उनसे जाहिर होता है कि वो मर्द है, और इससे पहले भी एक और टेलीपैथी जानने वाले ने हैरी को अपना ताबेदार बनाया था। इसका मतलब है हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर इस शहर तिल अबीब में टेलीपैथी जानने वाली बेशुमार बलाएं आ गई हैं। टेलीपैथी की बलाओं के अलावा अक्स मुंतकिल करने वाले भी बला के ख़तरनाक हैं। अगरचे उन्हें बैंक की लूटी हुई रकम ना मिल सकी, ताहम उन्होंने इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ यानी कि वो फार्मूले हासिल किए हैं। फार्मूलों के मामले में पहली कामयाबी उस नामालूम गिरोह को हुई है। उनकी बातों के दौरान थाने का इंचार्ज वापस आ गया। ब्लैक एडम को देखकर घबराया, परेशान होकर बोला, सर मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कमबख्त जादू जानता है। मुझे कुछ पता ही ना चला कि मैं कहाँ हूँ। जब मैं होश में आया तो थाने की जीप में एक सराय के सामने था। जे परगोला जीप से उतर गया था। फिर कोई जादुई कुव्वत मुझे वहाँ से यहाँ वापस आने पर मजबूर करती रही और मैं यहाँ चला आया। तुमने कौन सी सराय के सामने परगोला को छोड़ा था? यहाँ से 50 मील दूर कैबोज सराय के सामने। इसका मतलब है परगोला यरूशलेम की तरफ गया है, लेकिन वो भेस बदलकर फिर वापस आएगा क्योंकि फार्मूले इसी शहर से हासिल करेगा, और मरीना भी उसे यहीं मिलेगी क्योंकि वो भी फार्मूलों के चक्कर में होगी। टेरी एडम ने कहा, विच लेडी एला क्लैंसी को रिहा कर दो। उसके ख्यालात से पता चला है कि वो परगोला के साथ एक कब्रिस्तान में काला अमल करने वाली है। परगोला को यकीन है कि उस काले जादू से मरीना खिंची चली आएगी और फिर उसकी कनीज बन जाएगी। ब्लैक एडम ने कहा, परगोला अब मोहतात रहेगा, काला जादू करने के लिए विच लेडी से नहीं मिलेगा। टेरी ने कहा, लेकिन मैं विच लेडी के अंदर रहकर उसे मजबूर करूंगा कि वो काले जादू के जरिए परगोला का सुराग लगाए। अगर ऐसा ना कर सकी तब भी मैं यकीन से कहता हूं कि परगोला हर हाल में मरीना को हासिल करना चाहेगा। उसके लिए किसी कब्रिस्तान में जाकर अमल करेगा। उसके शैतानी दस्तूर के मुताबिक कल की अंधेरी रात काले जादू के लिए निहायत मौजू है। अगर ऐसा है तो मैं इस मुल्क के हर कब्रिस्तान में इंटेलिजेंस वालों का जाल बिछा दूंगा। फिलहाल परगोला को घेरने और पकड़ने के 2 ही रास्ते थे। एक तो विच लेडी थी, उसके जरिए परगोला तक पहुंचने की तवक्को थी। दूसरा ये कि वो मरीना को अपने पास बुलाने के लिए कब्रिस्तान में काला अमल करने आए।
टेरी एडम और ब्लैक एडम ने यह तय किया कि वो कब्रिस्तान में आएगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, छुपकर तमाशा देखा जाएगा। अगर काला जादू वाकई काम करेगा और छुपी हुई मरीना को कब्रिस्तान में खींच लाएगा तो ऐसे वक्त जे परगोला के साथ मरीना भी काबू में आ जाएगी। यूं यहूदी खुफिया तंजीम में एक और ख्याल ख्वानी करने वाली का इजाफा हो जाएगा। रीटा अपने बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी। होश में आते हुए आंखें खोलने के बाद उसे सबसे पहले जिस्मानी तकलीफ का एहसास हुआ था। सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। तब याद आया कि उस हवसनाक दरिंदे ने किस तरह उसे दांतों से काट काट कर लहू लहान किया था और एक शैतान की तरह फातिहाना अंदाज में कहकहे लगाता रहा था। वो उठकर बैठ गई। बैठने से भी तकलीफ हो रही थी। सामने एक कदादम आईना था जिसमें वो हमेशा अपने हुस्न शबाब को बज़िद नाज देखा करती थी। उस वक्त जख्मों से भरे हुए बदन को देखकर हलक से चीख निकल गई। आईना बता रहा था कि उस दरिंदे ने उसे बिल्कुल ही खंडर बना दिया है। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोली, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कौन है? कौन है वो जे परगोला के नाम से और उसके काम से वाकिफ नहीं थी। उसके काम का एक छोटा सा नमूना आईने में देख रही थी और रो रही थी। उसने पहली बार कैबोज सराय के सामने उसे देखा था। उसने ललचाई हुई नज़रों से उसे देखकर कहा था, तुम्हारी सूरत और तुम्हारा बदन मेरी हवस को पुकार रहा है और जो हसीना मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे नहीं छोड़ता। रीटा ने उसे गुरूर और नफरत से देखा था, फिर एक तरफ थूक कर कहा था, देखो मैंने उधर थूका है। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं अपना थूक तुम पर जाया करूं। जाओ और आईने में शैतानी सूरत को देखकर खुद पर थूकते रहो। ये कहकर वो सराय के अंदर जाना चाहती थी, तभी दिमागी तौर पर गायब हो गई। कभी वो दिमागी तौर पर हाजिर हो जाती थी, खुद को ड्राइव करता देखती थी, फिर गायब दिमाग हो जाती थी। आखिरी बार उसने खुद को अपने बेडरूम में देखा। उसके साथ ही वो शैतानी सूरत वाला नजर आया। वो एकदम से चीख पड़ी। उसने एक कहकहा लगाकर पूछा, क्या अब भी मुझे देखकर नहीं थूकोगी? तुम्हारा थूक कीमती है, उसे मुझ पर जाया नहीं करना चाहती? वो सहम कर पीछे हटी और बोली, तुम कौन हो? मुझे यहाँ कैसे ले आए? क्या तुम कोई जादूगर हो? उसने गिरबान पकड़कर एक झटके से खींचा। लिबास दूर तक फटता चला गया। वो भागकर जरा दूर चली गई। उसने पूछा, कहाँ जाओगी? मुझे भी थूकने का मौका दो। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई, फिर कमरे से निकलकर उसी तरह दौड़ती हुई अपने बंगले के बैरूनी दरवाजे पर जाके रुक गई। वहां से पलटकर फिर दौड़ती हुई अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी और अंदर चीखने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, उस शैतान के पास नहीं जाऊंगी। मगर वो शैतान के सामने पहुंचकर रुक गई। वो कहकहे लगा रहा था। जब वो सामने आई तो उसने मुंह पर थूक दिया। वो तौहीन के एहसास से पागल हो गई। उसका मुंह नोचना चाहती थी मगर दोनों हाथ उठा नहीं पा रही थी। शैतान ने कहा, अपने हुस्न शबाब पर बहुत नाज करती है, मुझ पर थूकना भी अपनी तौहीन समझती थी। आख थू, ये ले। उसने फिर मुंह पर थूक दिया। वो हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी, अपने सर के बालों को नोच रही थी, अपनी बेबसी को समझ रही थी कि वो शैतान के बस में है। अपने बचाव की कोशिश करने के भी आसार नहीं नजर आ रहे थे। वो उसे नोच रहा था, खसोट रहा था, प्यार भी कर रहा था, हकारत से जख्म भी दे रहा था। उसने अपने गोरे खूबसूरत बदन से लहू रिसते हुए देखा, खुद को बुरी तरह जख्म खोरदा देखा, फिर वो होशो हवास से बेगानी हो गई। अब होश में आकर आईने के सामने खुद को एक खंडर की सूरत में देख रही थी और रो रही थी। इसलिए रोना आ रहा था कि अब गुरूर करने के लिए कुछ नहीं बचा था। डाकू भी लूट कर जाते हैं तो पीछे कुछ छोड़ जाते हैं। उसने तो बदन पर कपड़ा तक नहीं छोड़ा था। दरवाजे पर आहट सी हुई। उसने पलट कर देखा, वहां कोई खड़ा हुआ था। उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट था। वो उसे देखते ही बिस्तर से चादर उठाकर खुद को छुपाते हुए बोली, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिस पर थूकना तुम गवारा नहीं करती थी। बस मामूली सी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदल लिया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ। चाहने की पहली किस्त वसूल कर चुका हूँ। चलो बिस्तर पर लेट जाओ। ये मेरा दस्तूर है कि मैं जख्म देने के बाद अपने हाथों से मरहम लगाता हूँ। वो पैकेट खोलकर दवाएं निकालने लगा। वो बोली, तुम बाहर जाओ, मैं खुद ही मरहम लगा लूँगी। उसने अचानक ही एक थप्पड़ रसीद किया। वो लुढ़खड़ाती हुई बिस्तर पर गिर पड़ी। वो बोला, सुअर की बच्ची मुझे हुक्म देती है, मैं बाहर जाऊँगा तो पुलिस अंदर आएगी क्योंकि तुम्हारी गाड़ी की सीट के नीचे हीरोइन के पैकेट्स रखे हुए हैं। वो घबरा कर बोली, नहीं, तुम पुलिस को इतला नहीं दोगे। तुमने तो मेरी बोटियां ही नोच ली हैं। अब ये जुल्म ना करो। तो फिर आराम से लेट जाओ। जख्म देना और मरहम लगाना मेरा मशगला है।
वो हुक्म की तामील पर मजबूर हो गई। खामोशी से लेट गई। वो एक एक जख्म पर मरहम लगाने लगा। ये एक एक जख्म की तकलीफ से कराहने लगी। उसने कुछ दवाएं खाने को दी। थोड़ी देर बाद वो सो गई। जेरी ने परगोला के पास आकर कहा, बॉस वो सो गई है। परगोला ने कहा, तुम जाओ और उस पर अमल करके उसे मेरी ताबेदार बना दो। वो बेडरूम से बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसने अपना चेहरा और हुलिया बदल लिया था। पुलिस वाले उसे अब पहचान नहीं सकते थे। वो गौर करने लगा कि भेस बदलने में कोई कमी तो नहीं रह गई है। गौर करने से गलती का सुराग ज़रूर मिलता है। ये बात समझ में आई कि उसे जादूगरों जैसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, वरना भेस बदलने के बावजूद पुलिस शुबे में गिरफ्तार कर लेगी। वो मरीना को भूल नहीं सकता था। एक टेलीपैथी जानने वाली पर दोबारा कब्जा जमाना ज़रूरी था और उसके लिए एक बार काले जादू का अमल करना लाजमी हो गया था। वो ऐसी जगह छुपी हुई थी कि उसके दो ख्याल ख्वानी करने वाले भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। यही एक काले जादू का सहारा रह गया था। अगली रात चांदनी नहीं होगी। कब्रिस्तान में गहरी तारीकी छाई रहेगी। कल की रात काले अमल के लिए मौजू होगी। उसे पूरा यकीन था कि मरीना कहीं भी छुपी होगी तो काले मंत्रों से खिंची चली आएगी। ऐसे वक्त विच लेडी एला क्लैंसी होगी तो काम आसान होगा, लेकिन वो उसे हवालात में छोड़ आया था। ये उसकी खुदगर्जी थी, लेकिन मजबूरी भी थी। अगर एला को साथ लाता तो उसकी हमाकतों और बेतुकी अदाओं से पुलिस की नज़रों में आ जाता, लिहाजा उसे दूर रहने में ही उसकी सलामती थी। विच लेडी एला के मुतल्लिक सोचते हुए ख्याल आया कि हवालात में उसकी पिटाई की गई होगी और नतीजे में बुज़दिल विच लेडी ने परगोला की हकीकत उगल दी होगी। शायद ये भी बताया हो कि मरीना को हासिल करने के लिए परगोला किसी कब्रिस्तान में शैतानी अमल करने वाला है। और परगोला सोच रहा था, हो सकता है एला क्लैंसी ने कब्रिस्तान वाली बात ना बताई हो, लेकिन दिल में अंदेशे धड़क रहे थे। वो पसो पेश में था कि कल रात शैतानी अमल किया जाए या अगली किसी अंधेरी रात का इंतज़ार किया जाए। एक तो मरीना को दोबारा हासिल करने की बेचैनी थी, दूसरी बेचैनी उन डाकुओं को तलाश करने की थी जो अक्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का जादुई तमाशा दिखा रहे थे। उसका ख्याल था कि ऐसा तमाशा दिखाने वाली मशीन अगर उसके हाथ लग जाए तो वो अपने अक्स को उस जगह मुंतकिल कर सकेगा जहां वो फॉर्मूले छुपा कर रखे गए हैं। उसने एना लाना और वाइन लोइन के ट्रांसपेरेंट चेहरे देखे थे। वो चेहरे पूरी तरह वाजे नहीं थे, फिर भी उसका ख्याल था कि वो कहीं भी देखेगा तो उन्हें पहचान लेगा। और अगर उसे एना लाना और वाइन लोइन के नाम मालूम होते और उनकी कोई मखसूस शनाख्त होती तो वो उन दोनों के नामों के पुतले बनाता, उन पुतलों में उनकी मखसूस शनाख्त रखता, फिर शैतानी अमल के ज़रिए पुतलों में सुइयां चबोता तो वो दोनों चुभन की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से बेहाल होकर कब्रिस्तान में दौड़े चले आते। लेकिन वो उन दोनों के मुतल्लिक खातिर खा मालूमात नहीं रखता था, इसलिए ऐसा अमल नहीं कर सकता था। उसने आंखें बंद कर लीं। तसव्वुर में एना लाना का चेहरा याद करने लगा। अच्छी तरह याद नहीं आ रहा था। उस बैंक में एक निहायत ही हसीन और कमसिन लड़की ट्रांसपेरेंट नजर आई थी। सचमुच की कोई नेक रूह लग रही थी, मगर वो नेकी करने नहीं, डाका डालने आई थी। काश वो पूरी तरह वाजे होती, लेकिन अब तो गुजरते हुए वक्त के साथ उसके तसव्वुर से भी आज कल में मिटने ही वाली थी। ये उस रात की बात है जब वाइन लोइन ने समंदर के किनारे हैरी रॉबिन्सन के जिस्म में 2 गोलियां पैवस्त कर दी थीं। फिर उसने वॉकी टॉकी के जरिए एना लाना से कहा था, मैंने कम वक्त फ्रॉड हैरी के जिस्म में 1 नहीं 2 गोलियां उतार दी हैं। वॉकी टॉकी फेंक दो, इसके जरिए पकड़े जाने का अंदेशा है। फौरन दौड़ती हुई ब्लू हेवन के पीछे आओ, दैट्स ऑल। इतना कहकर वाइन लोइन अपना वॉकी टॉकी फेंक कर भागता हुआ ब्लू हेवन की तरफ चला गया था। उस क्लब के पीछे दूसरी बहन मामेला अपनी कार के पास भाई बहन का इंतजार कर रही थी। वाइन लोइन ने करीब आकर हाँफते हुए कहा, मैंने हैरी का काम तमाम कर दिया है। उससे बैंक की रकम मिलने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं और वो कमबख्त पुलिस वालों को हमारे पीछे लगा रहा था। मामेला ने कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। वो जिंदा रहता तो हमारे लिए अंदेशे पैदा करता। एना कहाँ है? मैंने वॉकी टॉकी के जरिए उससे कह दिया था कि वो फौरन इस क्लब के पीछे चली आए, वो आ ही रही होगी। वो छोटी बहन का इंतज़ार करने लगे और दूर दूर तक नज़रें दौड़ाने लगे। वहाँ फायरिंग की आवाज़ें गूंजती रही थीं, जिसके नतीजे में सनसनी सी फैल गई थी। लोग एक दूसरे से पूछते फिर रहे थे कि किसने फायरिंग की, कहाँ वो गोलियां चलाई गईं। इस सिलसिले में तरह तरह की बातें हो रही थीं। मामेला ने कहा, हमने बड़ी हिकमत अमली से लाखों डॉलर्स और पाउंड्स लूटे थे,
इतनी बड़ी रकम का एक नोट भी हमारे हाथ नहीं आया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सिस्टर, ये सदमा दिल से निकाल दो। आइंदा हम इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि पिछले नुकसान की तलाफी हो जाएगी। मामेला ने अपनी रिस्ट वॉच देखकर कहा, 15 मिनट गुजर चुके हैं, एना अभी तक क्यों नहीं आई? आती होगी, अभी उसमें बचपना है, वो पूरी तरह खतरात का एहसास नहीं करती है, रफ्ता रफ्ता पक्की हो जाएगी। हाँ ब्रदर, अभी वो नादान है। मैं सुबह से महसूस कर रही थी कि वो उस नौजवान हैरी से मुतासिर हो गई है। मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक देखी थी। ये अच्छा हुआ कि मैंने जेरी को जहन्नम में पहुंचा दिया। हमारी माफिया तंजीम में इश्क मोहब्बत को हमाकत समझा जाता है। उसकी मौत के बाद ऐना के सर से इश्क का भूत उतर जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।